Doing. Draw fast. Answer some question would be a test mark. You may or more than partner if nothing is specified. What do you do? मुझे डाउट गया Executors non legal help. Must be you are paying. Then actually you are not having money. You are. पहले मैं भरी यूज करेंगे चलो ड्रॉ फास्ट क्विक. मोबाइल से बंद रखना 200 रुपये फाइन मारो. साइलेंट. चलो गाइस ड्रॉ फास्ट फटाफट ड्रॉ करो. सम नंबर 3. Six subject. Resolution कैसा क्या था बच्चा? 3 weeks. 3 weeks. It will be worse. ले हम 10 लेक्चर How दिवस? एक महीने 2 महीने पाँच पता नहीं क्यों जाने में आपको बोल रही थी कि आज वो खेलोगी मंडे बोलेगी आज ऑर्डर पार्टनर्स Yes, 3 parts. ये अच्छी बात है ये तो पार्टनर क्वेश्चन खत्म करती है गुस्सा आता है अभी तक हम सिर्फ 4 करते हैं एक पेज मारी. Resolution बच्ची. Resolution बच्ची. Go on. What was your first step? You remember I gave you the steps on the last side of your notebook. Transfer every dime item from your balance sheet. चलो खाली करते हैं balance sheet को. Sum number 3 ले लो फटाफट. A, B, C are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:1:1. मिला? Start emptying the balance sheet. So start with capital. Sir, that's my in the books of नाम रख लीजिए जो सारे. चलता है. By balance BD. Start with by balance BD. 25,000. Sir, one will draw. 30 and 20. Start. Don't talk now. Chalo. First step is emptying the balance sheet, right? So you start with the balance. What next? You come to your reserves. You got general reserve, right? What are you supposed to do with general reserve? Distribute them to all the 3 partners in old ratio. Can you see general reserve amount? That's 10,000. So what is the division? 311 है ना? Meet. Be amount. So 6,000, 2,000, 2,000. Is that right? 622. Correct? Sir, उबालो ना सर. Right fast.
सर हमारा याद है बे कॉलम फटाफट 6,000, 2,000, 2,000. What next? You got P&L account on the asset side. Can you see that? What are you supposed to do with that? ये कल वाले पेपर में भी था, याद आया? Many of you have missed that. काफी कॉमन मिस्टेक इधर ही मिला है कि P&L खा गए और गुडविल खा गए. दोनों एसेट साइड पे था, दोनों कैपिटल डेबिट में लिखा था, खा गए. लिखा है? खा गए. गुडविल लिखा है? P&L लिखा है? गुडविल खा गए. So, कौन सा साइड पे यू डिस्ट्रीब्यूट P&L? डेबिट और क्रेडिट? डेबिट. इस पे कौन टू P&L कितना है? 5,000 है ना? तो 311 आएगा. इज दैट राइट? हेलो 311, 3,000, 1,000, 1,000. That's your P&L accumulated loss. What about bank balance? You go to bank account to balance BD. That's how much? 18,000. मुझे बताओ अभी. Once you have transferred the balance and capital and reserve, what about the remaining assets and remaining liabilities? Transfer to realization. Where do you transfer the assets to? Debit or credit? Assets to debit and liabilities to credit. Why so? Asset का normal balance क्या होता है? Debit. उसको बंद करना है तो asset को दो credit. तो asset में लिखा जाएगा by realization और realization में लिखा जाएगा to assets. ऐसिया एसेट्स में लिखा जाएगा बाय रियलाइजेशन और रियलाइजेशन में लिखा जाएगा टू एसेट्स. तो इधर आएगा टू सन्ड्री एसेट्स. बराबर है? टू सन्ड्री एसेट्स. टू सन्ड्री एसेट्स. ध्यान से देखना. ट्रांसफर देना बुक वैल्यूज स्टार्टिंग विद बिल्डिंग. बिल्डिंग कितना था आपके पास? 41,000 मिला. फर्नीचर was 5,000. मोटर कार 9 and what else? Sundry debtors 37. टोटल कितना होता है? 72. 82,000. एसेट्स में लिखा बाय रियलाइजेशन. रियलाइजेशन में आ गया टू एसेट्स. एसेट्स ट्रांसफर हो. उसके बाद क्या करना है? लायबिलिटीज. लायबिलिटीज को कौन से साइड पे ट्रांसफर करना है? क्रेडिट साइड. तो लायबिलिटीज में लिखा जाएगा टू रियलाइजेशन. रियलाइजेशन में बाय लायबिलिटीज. लायबिलिटीज का भी अकाउंट बंद करके लिख देने का बाय सन्ड्री लायबिलिटीज. इसमें आ जाएगा क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स आर 15,000 और बिल्स पेबल भी. क्रेडिटर्स आर 15 and bills payable are 5. So total it is 20,000. Total it is 20,000. Is that right? Done? So check कर लो. ये स्टेप के बाद every item of balance sheet should have been transferred. Verified. ने कैपिटल्स कर लिया. रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड. क्रेडिटर बीपी चला गया रियलाइजेशन में. बिल्डिंग फर्नीचर मोटर कार डेटर भी चले गए. P&L डिस्ट्रीब्यूट हो गया. बैंक बैलेंस भी लिखा. जस्ट वेरीफाई दैट यू हैव ट्रांसफर्ड ईच एंड एवरी आइटम ऑफ योर बैलेंस शीट. वो होने के बाद व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? 2 and 3 कोर स्टेप्स ऑफ डिसोल्यूशन. वही मेन काम. क्या करते हो आप? सेल दी एसेट्स. पैसे इकट्ठा करो. पे ऑफ द लायबिलिटीज. So normally what is the journal entry for selling the assets? It is bank to asset. But इधर ऐसा नहीं करना है. याद है मैंने बताया था. इधर क्या करना है? पहले रियलाइजेशन टू एसेट और फिर बैंक टू रियलाइजेशन. रियलाइजेशन टू एसेट और फिर बैंक टू रियलाइजेशन.
क्यों ऐसा किया दो पार्ट्स में? क्योंकि आपको घड़ी घड़ी हर एक का प्रॉफिट लॉस ढूंढने की जरूरत नहीं, सर डायरेक्ट सब एक साथ आ जाए। तो बोला भाई ये डायरेक्ट किया ना, बैंक टू एसेट डायरेक्ट था, उसके जगह दो स्टेप्स, रियलाइजेशन टू एसेट और फिर बैंक टू रियलाइजेशन, सो दैट एक साथ सब प्रॉफिट लॉस मिल जाए। तो बैंक टू रियलाइजेशन, तो बैंक में क्या आएगा? टू रियलाइजेशन, और रियलाइजेशन में क्या है? बाय बाय बाय। अभी चेक करो कौन सा एसेट बेच के कितना पैसा मिला। बैंक में टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में बाय बाय। देखो जी, पार्टनर डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, द एसेट्स रियलाइज्ड एज अंडर, बिल्डिंग रियलाइज 45,000। रियलाइज का मतलब क्या है भैया? What do you mean by realized? करंट वैल्यू। इतना पैसा मिला बेच के, मार्केट में इतना पैसा मिला, रियलाइज मतलब इतना पैसा आया। ठीक है, करो डिस्कस। क्या भाव पे सेल हुआ है बिल्डिंग? 45। इधर लिख देने का बिल्डिंग 45, बराबर है। मस्त प्रॉफिट हुआ है 14,000, बट विल वी रिकॉर्ड दैट प्रॉफिट? एंड में अपने आप मिल जाएगा, है ना। बिल्डिंग के बाद पढ़ो आगे, और क्या दिया है? मोटर कार इज टेकन ओवर बाय ए। अरे अच्छा, हाँ, फर्नीचर इज टेकन ओवर बाय सी एट 3,000, मोटर कार इज टेकन ओवर बाय, वो टेक ओवर है, बाद में करते हैं। सन्ड्री डेटर्स रियलाइज्ड 43, रियलाइज्ड मतलब पैसा आया। डेटर से कितना आया? 43 आया। और bills payable discharged at book value, that's liability, and realization expenses paid 1,000, वो तो liability। तो एसेट में खाली दो ही एसेट से पैसा आया जो हमने लिख दिया, बराबर है। और कोई दिख रहा है एसेट जहां से पैसा आया? तो टोटल कर लो 88, इधर भी लिखो 88 और बैंक में भी लिख दो 88, बैंक में भी लिख दो 88, टू रियलाइजेशन 88, बराबर है। बैंक में भी लिख दो टू रियलाइजेशन 88। इज दैट क्लियर? बैंक में भी लिख दो टू रियलाइजेशन 88, रियलाइजेशन में बाय बैंक 88। देन बढ़े आगे, once you are done assets sold off, go to assets taken over, go to assets taken over। टेकन ओवर का और सोल्ड ऑफ में क्या फर्क है? टेक ओवर में क्या होता है? पार्टनर लेके जाता है। और इधर नॉर्मल जर्नल एंट्री फॉर एसेट टेकन ओवर, पार्टनर कैपिटल टू एसेट, बराबर। ये तो आपने किया एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में, यही एंट्री है, लेकिन दो स्टेप में करनी है। क्या करना है? रियलाइजेशन टू एसेट और फिर पार्टनर कैपिटल टू रियलाइज। वापस देखोगे तो नेट इफेक्ट रिमेन्स, लेकिन वाई टू पार्ट्स? हर एक का प्रॉफिट लॉस इंडिविजुअली कैलकुलेट नहीं करना, बराबर है। दैट्स द ओनली रीजन। तो यहां पे क्या करना है? रियलाइजेशन टू एसेट किया हुआ है, अभी क्या करना है? पार्टनर कैपिटल टू रियलाइज। तो पार्टनर कैपिटल में टू रियलाइजेशन एंड रियलाइजेशन में बाय। पहले तो कौन लेके गया इधर? सी लेके गया, तो बाय सी क्या? सी क्या लेके गया? पढ़ो, जो फर्नीचर लेके गया, सी टू का वे फर्नीचर, क्या भाव पे? 3,000। और ए भी लेके गया ना, ए ना, ए क्या लेके गया? मोटर कार लेके गया, तो बाय ए क्या? मोटर कार, क्या भाव पे लेके गया? 15,000। तो रियलाइजेशन में बाय सी कैप एंड बाय ए कैप, और ए और सी में क्या लिखा जाएगा? टू रियलाइज। ए में 15, सी में 3। क्यों डेबिट किया इनका कैपिटल? व्हाट इज द रीजन ऑफ took away the asset, we are reducing that capital from the business point of view। उनका कैपिटल्स कम कर रहे हैं, in future will be paying that much less to them, that is the meaning। तो एसेट टेकन ओवर ही है, नॉर्मल जर्नल एंट्री है, खाली एक के जगह दो पार्ट्स में किया। पहले लायबिलिटी टू रियलाइजेशन, सॉरी रियलाइजेशन टू एसेट, और फिर कैपिटल टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन टू एसेट, कैपिटल टू रियलाइजेशन। ठीक है।
हो गया एसेट साइड खत्म. आफ्टर एसेट साइड इज ओवर यू मूव टू liabilities. You move to liabilities, try to pay off the liabilities. मुझे बताओ what is the normal journal entry to pay off a liability? It is liability to bank, right? या liability to cash. But here what do you do? दो पार्ट्स में करते हो वापस. क्या दो पार्ट्स में करते हो? Liability to realization and realization to bank. Liability to realization and realization to bank. लाइबिलिटी टू रियलाइजेशन ये ऑलरेडी हो चुका है. रियलाइजेशन में बाय लाइबिलिटी. अब पे ऑफ करते वक्त क्या लिखना है? रियलाइजेशन टू बैंक. इंस्टेड ऑफ लाइबिलिटी टू बैंक, राइट? रियलाइजेशन टू बैंक. रियलाइजेशन में टू बैंक, रियलाइजेशन में टू बैंक और बैंक में बाय रियलाइजेशन. दैट्स योर जर्नल एंट्री टू पे ऑफ लाइबिलिटी. दैट्स योर जर्नल एंट्री टू पे ऑफ लाइबिलिटी. वैसे तो सबसे पहले कौन सी लाइबिलिटी पे ऑफ करनी होती है याद है आपको? लीगल एक्सपेंस. उससे भी पहले रियलाइजेशन एक्सपेंस, मिडल मैन का खर्चा. ये तो प्रोसेस अटक जाए. तो सबसे पहले रियलाइजेशन है, बाद में सिक्योर्ड, बाद में अनसिक्योर्ड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. बट यहाँ पे तो अमीर है हम लोग, अच्छा खासा बिजनेस बंद कर रहे हैं, तो पैसे की कोई दिक्कत नहीं है. कोई भी ऑर्डर करो चले. देखते जाओ क्या दिया. इन्फॉर्मेशन अबाउट क्रेडिटर्स. कितने में पे ऑफ किया क्रेडिटर्स पर? काय लिखो ना तो बुक वाली कुछ नहीं दिया जो बुक वाली पे ऑफ करना है पक्का. एसेट में काय इन्फॉर्मेशन नाही. Exactly. एसेट का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया तो इग्नोर. बट लाइबिलिटी का नहीं दिया तो रिक्वायर नोट. क्या था assumption याद है? If no information is given about a particular asset, then you ignore. But if no information is given about a particular liability, then pay off at book value. Conservative. याद आया? नोट लिखवा है लास्ट पेज पे. लिखा होगा आपने. दिख रहा है आपको? If no information is given about an asset, ignore. But if no information is given about a liability, pay off at book value. Pay off at book value. तो टू बैंक में सबसे पहले पे ऑफ क्रेडिटर. सबसे पहले पे ऑफ क्रेडिटर. देन कुछ है इन्फॉर्मेशन अबाउट क्रेडिटर? नहीं है. तो बुक वैल्यू 5,000. बीपी का है? बीपी का दिया है? क्या दिया है? डिस्चार्ज बुक वैल्यू. डिस्चार्ज मतलब पे ऑफ. डिस्चार्ज मीन्स पे ऑफ. रियलाइज्ड मतलब रिसीव्ड एंड डिस्चार्ज मीन्स पे ऑफ. रियलाइज्ड का मतलब पैसा आना, डिस्चार्ज का मतलब पैसा जाना. बराबर. और कुछ? रियलाइजेशन एक्सपेंस. पहले करो कि बाद में करो कोई फर्क नहीं पड़ता. लेट्स पे ऑफ द रियलाइजेशन एक्सपेंस. कितना है वो? इसका कोई अलग एंट्री आएगा कि साथ में आएगा? बता रहे रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड, एंट्री रिमेन्स सेम. आप ऐसे सोचो इनका 15 का 15 पे किया, इसका 5 का 5 पे किया, इसका 0 का 1000 पे. बुक में 0 था, इधर 1000 पे. Whether it's recorded, whether it's unrecorded, it does not matter. Pay it off in the same entry. Two bank. 21,000. Total 21,000. Corresponding entry there be 21. Bus, I think sum is over. Find out your 126 profit or loss. क्रेडिट વધારે છે. Which side is bigger? क्रेडिट Credit 126. 126. 23,000 प्रॉफिट. 23 का प्रॉफिट है. ये 23 कहां से आया समझ में आ रहा है आपको? इस 23 के अंदर कौन सा प्रॉफिट पड़ा हुआ है? सब एसेट और सब लायबिलिटीज का एक साथ. इसीलिए तो ये महान अकाउंट ओपन किया. इस महान अकाउंट की कृपा से हमने सभी प्रॉफिट और लॉस को एक जगह दिखा. घड़ी घड़ी दिखाने की जरूरत नहीं. समझ आया? तो क्या आ रहा है? 23,000 टोटल प्रॉफिट. 13,800 4,600 4,600. 13,800 4,600 4,600 बराबर छे. और लो इसको बोला जाता है रियलाइजेशन प्रॉफिट. क्या बोला जाता है? रियलाइजेशन प्रॉफिट. रियलाइजेशन में टू कैपिटल, कैपिटल में बाय रियलाइजेशन. दैट्स 13,800 4,600 4,600. Is that clear?
13,800, 4,600, 4,600. Got it? 13,800, 4,600, 4,600. Once you transfer the realization profit, now you shut down capital. Normally, what do we write in capital? Balance. Balance we write, right? To bank. But will you write your balance? Why not? Not continuing. अगर बैलेंस लिखा तो क्यों रॉन्ग है? एंड एंड नहीं होगा, कंटिन्यू हो जाएगा. आर वी कंटिन्यूइंग? नो. रिटायरमेंट में एक जाता है तो एक को पैसा देते हो, डेथ में एक जाता है तो एक को पैसा देते हो. इधर कौन जाए? सब जाए. तो सबको पैसा दो और खत्म. तो क्या लिखोगे? टू बैंक. सब में टू बैंक. क्रेडिट माइनस डेबिट. 44,800 आ रहा है. हेलो 36,600. कितना नहीं, है? क्या नहीं. 36,600. 26,600. तीसरे का हाँ. 26,800 बैलेंस. एक मिनट. 26 800, 35,600, 24,600. 24 तीनों को पे ऑफ कर दिया. टू बैंक पे ऑफ ऑल द थ्री पार्टनर्स. टू बैंक पे ऑफ ऑल द थ्री पार्टनर्स. कैपिटल में टू बैंक. तो बैंक में क्या है? बाय कैपिटल. बाय ए कैप, बाय बी कैप एंड बाय हाँ. वो 22,600 होना चाहिए ना. कौन सा? वो थर्ड सी कार्ड 4600 है ना. ये बराबर है. 22 आए. हाँ, 26,800, 35,600 एंड 22,600 बराबर है. 1,06,000. टैली हो रहा है क्या? हाँ. दोनों साइड चेक किया. नहीं. दोनों साइड चेक करो यार. एक साइड का ब्लाइंडली डोंट राइट. 1,06,000, 1,06,000. It tallies. Check. Tallies on 1,06,000. Check. By A cap, by B cap, by C cap. याद आ गए स्टेप्स? हाई जैसा 1,00,000. हो रहा है टैली. चेक कर लो ये भी. 20, 30, 50, 20, 70, 20, 90, 96, 97, 102, 104, 106. 106. 106,000 it tallies, right? All of you got that? याद आ गए स्टेप्स? What was your step number 1? Empty the balance sheet. Transfer everything. Step 2. Sell या take over. Sell या take over assets. Step 3. Pay off या take over liability. यहाँ पे मैं liability take over नहीं